जीएसटी की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद यानी गुड्स एवं सर्विस टैक्स काउंसिल की 53वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। आम चुनाव में जीत के बाद मोदी 3.0 सरकार में जीएसटी परिषद की इस पहली बैठक में कई राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हुए। 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि जीएसटी परिषद की बैठक में व्यापार सुविधा, करदाताओं को राहत देने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी परिषद में कुछ शर्तों के अधीन 2017 और 2020 के बीच डिमांड नोटिस पर जीएसटी अधिनियम की धारा 73 पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की है। Third GST Council meeting has actually taken a lot of decisions on trade facilitation, easing compliance burden, and giving relief to taxpayers in terms of compliance easing out. So this will benefit the traders, MSMEs, and taxpayers, is my strong view. There was a decision taken today, and the GST Council recommended waiving interest and penalties for demand notices that have been issued under Section 73 of the GST Act. What are the items which are under Section 73? Cases not involving fraud, suppression or misstatements. वित्त मंत्री ने कहा कि अगर लंबित टैक्स डिमांड का भुगतान 31 मार्च 2025 से पहले किया जाता है तो सभी ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाएगा। For all those notices which were issued under Section 73, for the fiscal years 2017-18, 18-19 and 19-20, the Council has recommended waiving interest and penalties on the demand notices which have been served. And this will be applicable in cases where the taxpayer pays the full amount of tax demanded in the notice by 31/3/2025. So notices were issued for those 3 financial years under Section 73 of the CGST Act. So if the taxpayer comes forward to pay the total amount before 31st March 2025, he shall not have to pay the interest or the penalties which have been normally put on them. So that relief has been given. सरकारी मुकदमेबाजी को कम करने के लिए विभाग द्वारा अपील दायर करने के लिए जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए 20 लाख रुपए, उच्च न्यायालयों के लिए 1 करोड़ रुपए तथा उच्चतम न्यायालय के लिए 2 करोड़ रुपए की मौद्रिक सीमा की सिफारिश की गई है। वहीं रेलवे सेवाओं को जीएसटी से छूट दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं जैसे प्लेटफॉर्म टिकट, बैटरी चालित कार सेवाएं आदि को जीएसटी से छूट दी गई है। तो वहीं शिक्षा परिसर के बाहर छात्रावास द्वारा दी गई सेवा में भी जीएसटी छूट देने का फैसला किया गया है। Services provided by Indian Railways to the common man, sale of platform tickets, facility of retiring rooms, waiting rooms, cloakroom services, battery operated car services are being exempted from GST. Further, intra-railway supplies are also being exempted. Service by way of hostel accommodation is presently not exempt, which are being provided for students if they are outside of educational institutions. Am I right? If they are within an educational institution, they are already exempt. Please let there be clarity. Hostels which are for students which are within a resident which are within an educational institutions are already exempt. Now, hostels which are for students but outside of an educational institutions are also getting exempt. But the measure of relief for students and working professionals, Council has recommended to exempt accommodation services having a value of supply up to 20,000 per person per month. So it can be hostels run by Samaj, so that poor people belonging to their Samaj come there,
stay there for 20,000 rupees per person per month, they will not be worried about GST at all. तो जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए फैसले का आम नज़रिए से समझने की कोशिश करने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शुभमोय भट्टाचार्य जी। शुभमोय जी, स्वागत है आपका स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे बड़ा सवाल यही कि जो तमाम तकनीकी बातें हैं उसको आसान भाषा में समझें, आखिर आम आदमी के हिस्से में क्या कुछ रियायत या सहूलियत आई है आज? ये दो चीज़ों इस इन जीएसटी काउंसिल के डिसीजन से आज सामने आता है। एक कि ये जो स्मॉल वैल्यू आइटम्स है जिसका भी वित्त मंत्री जी जिक्र कर रहे थे, जैसे हॉस्टल फीस या जैसे बहुत सारी चीज़ें जैसे प्लेटफॉर्म टिकट्स, रिटायरिंग रूम्स, ये कोई इनमें कोई ऐसा भयानक कोई अमाउंट नहीं होता, लेकिन इसमें ये जीएसटी लगने से इस पर, क्योंकि उनके जीएसटी का जो रेट्स है वो 18% वगैरह है, तो दाम में बढ़ोतरी हो जाती है। इन सारी चीज़ों को जो साधारण लोगों के इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनमें काफ़ी हद तक जो छूट देने की जो बात हुई है, ये बहुत बड़ा मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इनसे क्या होता है इरिटेंट्स जिसे हम कहते हैं कि हर छोटी छोटी चीज़ों में एक जीएसटी है, वो जीएसटी नहीं रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट में जो सब्सटैंटिव चीज़ है और जो बिजनेस वालों के बारे में है, वो जब टैक्स क्रेडिट लेते हैं तो उस टैक्स क्रेडिट में पैन का जिक्र है, बहुत सारी दूसरे आइडेंटिफायर्स हैं, साथ में आधार को भी लिंक कर देने से पैन आधार का जो लिंकेज जो ऑलरेडी हमारे टैक्स सिस्टम में है उसके साथ इसका जिसे कहते हैं कोई कंफर्मिंग हो जाता है, यानी कि दोनों चीज़ एक साथ मिल जाता है। तो इससे क्या होता है, लीकेज नहीं होता है। और आप देखेंगे कि पिछले 1-2 साल से ये जो सारी चीज़ें किए गए हैं, जो लीकेजेस को रोकने की प्रावधान जो किया गया है, उससे टैक्स जीएसटी के टैक्स में एक उछाल आया है। तो वो जो उछाल आया है उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है कि टैक्स इवेशन। तो यानी कि लोगों के लिए दो चीज़ें हैं कि टैक्स इवेशन जो बिज़नेस में हो सकता है उसको रोकने के लिए बहुत बड़ा कदम है कि आधार को भी आइडेंटिफायर के हिसाब से लाना। दूसरा, साधारण लोगों के लिए जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर जीएसटी से कोई खास इनकम नहीं होता है, लेकिन उससे लोगों के लिए अननेसेसरी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है, उनको हटाया गया है। आपको लगता है कि ट्रांसपेरेंसी और सिंप्लीफिकेशन को लेकर कहीं एक विज़न दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे कैसे काम किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, वो एक सोच कहीं काउंसिल की सोच में दिखाई पड़ रही है? बिल्कुल। और आप देखेंगे कि इसमें जो जैसे एग्जम्पशंस की, खासकर मैं इन जो लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए एग्जम्पशंस की जो बात होती है, जो स्मॉल टिकट आइटम्स, वो करने से क्या हो जाता है कि जीएसटी का जो पूरा सिस्टम है, पूरा मशीनरी है, वो अननेसेसरी इन तरह के डिटेल्स में उलझ जाने का संभावना खत्म हो जाता है। साथ में एक जो प्रावधान किया गया है कि अप टू अ पर्टिकुलर अमाउंट तक, आई थिंक 20,000 तक ये किया गया है कि उस पर डिपार्टमेंट अपील नहीं करेंगे टैक्स प्रोविजन के ऊपर, कि यानी कि टैक्स में अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई इश्यूज़ हैं, तो उस पर डिपार्टमेंट अपील नहीं करेंगे। तो अगेन आप देखेंगे एमएसएमई सेक्टर में जो इनके टैक्स सिस्टम में लाने की कोशिश किया जा रहा है, उनके लिए ये छोटे छोटे टैक्स अमाउंट्स है, लेकिन साथ में अगर उनके साथ अगर इंस्पेक्टर्स वगैरह की जो एक तादाद बन जाता है, जिसके लिए उनको एक खतरा लगता है, उनको एक मुसीबत सामने फेस करना पड़ता है, उससे रियायत मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं मानता हूँ, सिंप्लीफिकेशन का एक स्टेप है। जी बिल्कुल सर, वक्त फिलहाल इतनी अनुमति दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात को सिंप्लीफाई करके समझाने के लिए कि जीएसटी काउंसिल के हिस्से से आखिर निकल के क्या आया। शुभमोय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, उस ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। MDH का किचन